Hello, Virgo people. Welcome to my reading. How are you doing? This is a reading for your overall growth, your guidance, your healing in whatever or whichever area you need in your life, whatever field it might be, and overall growth. It's of self improvement, in whatever field you need, you should improve. So, this reading is of oracle cards. I'm using 5 multiple oracle decks to enhance your reading even further, to bring more accuracy into the reading. That's why I have already shuffled the cards here. So that the video doesn't become time consuming enough, long enough. So, Virgo people, it's your reading. Please pay heed to the messages, whatever divine messages is coming from the universe. I'll portray and convey those messages in front of you. And eventually, I'll show all the cards serially. So, let's start with your reading. Have faith in yourself, have trust in the reading, and certainly you'll have the ability to improve your life. Okay? Wish you all the very best. Let's start with your reading, Virgo people. The first card says, Career Transition. The first card says career transition. Some kind of career change is coming in your life. Change, excitement, opportunity, advancement. It is highlighting your career field, Virgo people. It is highly possible that it might not be resonating with some Virgos. It might be resonating with certain group of Virgos. So please take it as it resonates, because it's a general reading and it's very obvious and normal. So some kind of career change, career transition is entering your life, Virgo people, which fills you with excitement, which shows a path of opportunity, a new opportunity is arising, advancement. So you won't feel stuck anymore. Scarcity नहीं रहेगा आपके अंदर, बोर्डम नहीं रहेगा, स्टैग्नेंट नहीं रहेंगे आप. अगर ये सब अब तक चला है तो अब आगे नहीं चलेगा, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है. एज फार एज योर करियर इज रिलेटेड, द फेज इज चेंजिंग, बिकॉज साफ साफ यहाँ पे करियर ट्रांजिशन का कार्ड आया है. लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड. इट सेज, take control of your thoughts. Your thoughts are creating your reality. You must be knowing, मैं अपने हर एक वीडियोज़ में बोलती हूँ, मेरे मैनिफेस्टेशन के ऊपर, पॉजिटिव एफर्मेशन के ऊपर वीडियोज़ है इसी चैनल में, डिवाइन गाइडेंस में, जहाँ पे मैं बोलती हूँ, जहाँ पे मैं बोली हूँ वीडियोज़ में कि थॉट्स आर, रीडिंग्स में भी मैं बोलती हूँ, थॉट्स आर वेरी पावरफुल. हम लोग जो हैं, बनाते हैं खुद को, या फिर अपने लाइफ को जैसा बनाते हैं, उसके पीछे वजह एक ही चीज़ है, वो है हमारा थॉट, हमारा थॉट प्रोसेस, द पैटर्न ऑफ आवर थॉट, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव. क्योंकि हर एक थॉट का एनर्जी होता है, हर एक एनर्जी का एक वाइब्रेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है उस एनर्जी का, उस हिसाब से वाइब्रेट करता है, रेडिएट करता है वो एनर्जी. और जो आप अंदर से बाहर भेजेंगे, वही चीज़ बाहर से फिर आप तक आएगा लौट के. एनर्जी ट्रैवल्स दैट वे. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू थिंक, बिकॉज आवर थॉट्स आर एवरीथिंग. दे शेप आवर लाइफ. Okay, Virgo people, I hope you understand. So take control of your thoughts, because your thoughts are creating your reality. Manifestation. इसी को manifestation कहते हैं. जैसा thought होगा, जैसा desire होगा, dreams होगा, imagination होगा, visualization होगा, वैसे ही आपका reality बनेगा. अच्छा थॉट तो अच्छी रियलिटी, बुरा थॉट तो बुरी रियलिटी. सो प्लीज़ बी केयरफुल. दैट्स वाई यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू टेक चार्ज ऑफ योर थॉट, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स. कोई भी थॉट्स ऐसे आए, स्पेशली नेगेटिव, एवी आ जाए, उसे एक्सेप्ट मत कीजिए.
Just let it go, let it pass, and recreate, rebuild a new thought with a positive idea, with a positive one, certainly. Okay? That's how the process is of manifestation. इसीलिए देखिए आपका अगला कार्ड भी मैनिफेस्टेशन आया है. कैन यू सी दिस कार्ड इज ऑफ मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन यही होता है जो हम लोग थॉट से वास्तव में रूपांतरित करते हैं, ढालते हैं उसे. इमेजिनेशन से, ड्रीम से, डिज़ायर से रियलिटी में लाते हैं, उसी को हम लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं. सो हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिज़ायर. जो आपके मन में डिज़ायर है, कुछ अगर ख्वाहिश है, वर्गो पीपल, डिज़ायर्स हैं, तो उसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए. अगर पॉजिटिव चीज़ें चाहते हैं लाइफ से और रखेंगे अंदर, अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स, तो फिर मैनिफेस्टेशन कैसे पॉसिबल होगा. रियलिटी में नेगेटिव थॉट्स ही फिर मैनिफेस्ट करेगा आपकी लाइफ में. पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव सिचुएशन नहीं मैनिफेस्ट हो सकता है नेगेटिव थॉट से. नेगेटिव से नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव होगा. दिस इज़ हाउ द लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी वर्क्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. Dig deep, you know. So your thoughts are creating your reality. Have faith and stay focused on the outcome that you truly desire. Visualize कीजिए जैसा आप चाहते हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना, उसको विजुअलाइज कीजिए, पिक्चराइज कीजिए. आंखें बंद करके पिक्चराइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, एज इफ वो आपको मिल चुका, वो आपका डिज़ायर पूरा हो चुका. दैट इज़ हाउ इट विल सेट इन योर माइंड, इन टू योर सबकॉन्शियस, एंड देन फ्रॉम सबकॉन्शियस इट विल मैनिफेस्ट. बिकॉज सबकॉन्शियस से यूनिवर्स तक वो मैसेज पहुँचेगा, फिर उसे आप वास्तव में रूपांतरित कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रियलिटी में ला सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड. द नेक्स्ट कार्ड सेज मैनिफेस्टेशन. जैसा मैंने कहा, कैन यू सी हाउ डीपली दिस कनेक्टेड, दिस कार्ड्स आर कनेक्टेड. व्हाट अ डीप कनेक्शन. हो सकता है करियर लेके कुछ चल रहा है, या फिर कुछ वर्गोस को किसी और बारे में थॉट्स, ख्यालात आ रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर वर्गों का करियर ट्रांजिशन लेके ही होगा, बट मोस्ट केसेस में ये हो सकता है. लेकिन कुछ वर्गों के लिए कुछ और एरियाज़ ऑफ लाइफ भी हो सकता है. सो नेक्स्ट कार्ड इज़ मैनिफेस्टेशन. बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट वॉट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ. You have to be very, very honest with your thoughts about what you want in your life, about your wishes. Now write it down on paper. Manifestation step 1. हम लोग इंसान हैं. हो सकता है आपके अंदर 1 से 2 या 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा कुछ ख्वाहिशें हैं, डिज़ायर्स है, ड्रीम्स है जो आप फुलफ़िल करना चाहते हैं. तो सब एक साथ पॉसिबल नहीं है. स्टेप बाय स्टेप जाइए, और जो मैनिफेस्टेशन, फर्स्ट एक डिज़ायर को लीजिए, एक ड्रीम को लीजिए जो आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, उसे डेली बेसिस पे पेन पेपर उठाइए, उसे लिखिए. मन ही मन में चर्न करना वो भी पॉसिबल है, लेकिन बेहतर होगा, बिकॉज राइटिंग इज़ वेरी पावरफुल. सो पेन और पेपर उठा के लिखिए, उसे डेली बेसिस पे लिखिए. दिन में 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितने बार हो सके लिखिए, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अच्छी तरह से बैठ जाए, यू नो. क्योंकि वहीं से मैनिफेस्टेशन सारा होता है. जैसा मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, वहीं से मैनिफेस्टेशन होता है. तो write it down on paper what manifestation you want. Okay, Virgo people, this is how the procedure works, the spiritual law works. And step by step, एक मैनिफेस्टेशन पहले लीजिए, उसका प्रोसीड्यूर पूरा कीजिए. मैनिफेस्टेशन हो जाए, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन. फिर पेन और पेपर लेके
दूसरा मैनिफेस्टेशन अपने थॉट में चर्न कीजिए, लिखिए, राइट इट डाउन। उसके बाद देखिए जैसा आप चाहते हैं आपका रियलिटी मैनिफेस्ट करना, वैसे ही मैनिफेस्टेशंस आपके लाइफ में आएंगे या होंगे। आपका ड्रीम्स और डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, बिकॉज योर थॉट्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू रियलिटी। This is how you can help yourself in your career path, in any path you want, any field you want, any aspects of life you want. Okay? These are all the spiritual tactics, spiritual laws. This is how universe works. Moving on to the next card. It says receiving. This card speaks of receiving. It says, every day it becomes easier to receive the highest divine plan and to trust my inner guidance. Every day it becomes easier to receive the highest divine plan and to trust my inner guidance. Universe का जो divine plan है, जो डिवाइन टाइमिंग में होता है, उसे ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए। यूनिवर्स आपका भला चाहता है, बुरा नहीं चाहता है, बिकॉज यूनिवर्स इज़ वाइज, यूनिवर्स इज़ लविंग, यूनिवर्स इज़ केयरिंग। गॉट इट? सो रिसीव कीजिए उसे, हाथ फैला के उसे वेलकम कीजिए, रिसीव कीजिए। वॉट एवर प्लान इज यूनिवर्स is having for you. Accept that plan, accept that situation wholeheartedly. Welcome it. Welcome that change. We must always welcome the change. तभी हम लोग पीसफुल रह पाएंगे. So it's like a prayer, it's like a positive affirmation. Once again, I'm reading out this. एवरी डे इट बिकम्स ईजियर, ये आप खुद को बोलिएगा और यूनिवर्स को भी बोलिएगा, चाहे मन ही मन में हो, चाहे लिख के हो, चाहे ज़ोर से बोल के हो यूनिवर्स को। यू नो, एवरी डे इट बिकम्स ईजियर टू रिसीव द हाइस्ट डिवाइन प्लान एंड टू ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस। अपने इनर गाइडेंस को ट्रस्ट कीजिए वर्गो पीपल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस। उसके लिए अपने सोल से कनेक्टेड कीजिए, तभी आपको इनर गाइडेंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। गाइडेंस आता है सबकॉन्शियस माइंड से, गाइडेंस आता है, उसके लिए सोल से कनेक्टेड होना पड़ता है। मेडिटेट करके वो पॉसिबल है। माइंड को काम डाउन कीजिए, शांत कीजिए एंड गेट कनेक्टेड टू योर सोल, टू योर डिवाइन सेल्फ, टू योर हायर सेल्फ, and get all the answers that you want. Because our soul is connected to the divine, and that's how you will get the help from the source, from the divine, from the universe. So be receiving. Have this kind of attitude or mindset. Open your mind to receive the gift that universe is giving to you. Moving on to the next card, the last card of the deck. It says available. See, can you see the relation? सारा का सारा कार्ड्स शफल किया हुआ था, लेकिन फिर भी एक दूसरे से सब रिलेटेड है. So trust the universe, my dear. Trust the universe. Trust these messages. It's for your own good. It's for your benefit. All these cards are correlated. कभी कभी मैं खुद शॉक हो जाती हूँ देख के कि इतना रिलेशन एक कार्ड से और एक कार्ड में, इतना मैचिंग. Something is definitely changing in your life, my dear Virgos. So this card says available. I am open. अभी मैंने जैसे कहा इस कार्ड के बारे में कि be open to receive the gift, the change that universe is bringing it to you. So this available card says I am open. I'll read out the further message.
which is in the form of a prayer and positive affirmation. ये आप खुद को बोलिए, ये आप यूनिवर्स को बोलिए, और एक पेन पेपर लेके इसको लिखिए भी पॉजिटिव एफर्मेशन के तौर पे. Change me, divine beloved, into one who can offer you even the most baffling problems, knowing you will carry me to the right solutions at the right time. If I am utterly open, receptive, and available. So you have to be open in your mind. दरवाज़ा खुला रखिए, तभी रिसेप्टिव हो पाएंगे आप. तभी आप तक यूनिवर्स का भेजा हुआ गिफ्ट, चेंज, सिचुएशन जो भी हो आप तक पहुंचेगा जो आप चाहते हैं. दरवाज़ा बंद रखेंगे तो कैसे आएगा वो चीज़ आप तक, कैसे पहुंचेगा. I hope you're getting my point, Virgo people. So tell the universe, tell this to the universe. Universe, I am available. I am open to all your ideas and changes and situations, whatever you bring forth in my life. And I trust that, I trust you, I trust myself. So change me. Once again, I am repeating the prayer. Prayers are very powerful. Have faith in prayers. आप में से बहुत जने शायद प्रे करते होंगे. किसी का हैबिट नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का हैबिट है ये प्रे करने का. जिन लोगों का हैबिट नहीं है, मैं बोलूँगी आप लोग भी प्रेयर करना शुरू कीजिए. प्रे टू गॉड, प्रे टू द यूनिवर्स. जो अंदर है उसे बाहर निकालिए थ्रू द फॉर्म ऑफ प्रेयर. यूनिवर्स है वहाँ पे सुनने के लिए, आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए. लेकिन उसके लिए आपको ये मैनिफेस्टेशन का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा. ओके वर्गो पीपल, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द पॉजिटिव एफर्मेशन, द प्रेयर. चेंज मी, डिवाइन बिलवेड, इनटू वन हु कैन ऑफर यू इवन द मोस्ट बैफलिंग प्रॉब्लम्स. जो भी प्रॉब्लम्स है यूनिवर्स को बताइए. Universe will certainly help you and guide you through. Knowing you will carry me to the right solutions at the right time, because ये यूनिवर्स ही है जो आपको right time पे right solution दे सकता है. If I am utterly, mind it, if I am utterly open, रिसेप्टिव एंड अवेलेबल. इसीलिए ये अवेलेबल बोला गया है इस कार्ड में. यू हैव टू बी अवेलेबल, यू हैव टू बी ओपन टू रिसीव दोज थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन. Okay, Virgo people. So this was all about your reading. Hope it helped you and guided you through. So please make the amendments, make the necessary changes, whatever is needed in your life and in whichever areas you feel like bringing those changes. Okay, my good wishes are with you. Wish you all the best in your life ahead for your future, and see you in my next reading. Till then, take care. Bye bye. See you soon.